Hello, evening. I'm Dr. Liakar. I'm your host for tonight. And guys, today I take immense pleasure and honor in introducing today's speaker, Dr. Manisha Kaur Soni. She's my classmate since 11th standard, and she's a sister to me, a very close friend to me, and a girl I always look up to. Madam, as everybody know, has the same experience as I have. We've been practicing since 1994-95, and she is head of the department for Department of Physiology in Virar Orthopedic Medical College. She has 25 years of teaching experience, and she's the most sincere girl I've seen in my life, apart from my daughter. Okay, the most sincere doctor I've ever seen in my life, the most sincere female doctor I've seen in my life is Dr. Manisha Kapoor Soni. So, friends, she has huge experience, huge knowledge of books. So many books I don't know she must have read. So she's practicing in Virar since last 15-20 years and has a very good hand on diabetes. Let's welcome. Wasting much time. I would love to welcome uh, Dr. Manisha. So let's welcome her with a huge round of applause. So you Thank can you. unmute yourself and clap for madam. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you, Liak. Welcome, ma'am. Thank you. Over to you. Thanks. So thank you and very good evening to everyone. Thank you, Liaquat, for this wonderful, welcome. And yes, we've been like Liaquat said, we are in college. We've been together, and I remember earlier I was not practicing by the mind method, and I remember Liaquat always telling me that you join, and I don't know, for some reason I wasn't responding, and he added me to the Ignited Minds group Jabardasti. And one day when I was just scrolling the cases, and I realized, it is the cases that were shared over there were so wonderful. So that's when I told him, I said, "Mujhe ye karna hai," and that's how I started with my first 100 days course with him. And then since then, it's never there's no looking back, and it's a wonderful thing to learn from Liaquat. And and this platform, that is PHF, every Thursday this we get to hear so many cases, and everybody shares their own experiences. So today even I would like to share what I have learned, and I'm still learning, and I think it's slowly as aging is happening, more and more polishing is happening for the wisdom. So I'm able to grasp what 2 years back also Liaquat had said the same thing in his lectures, in the way he was teaching, but the understanding of it has happened now. So this is what I wanted to share through this case of mine. And so, like, the topic is just say the name of the topic is like, it's a case of para ovarian cyst. So ये एक सर्जिकल केस है, और 12 साल की लड़की का केस है ये, और ये अपने फादर के साथ मेरे क्लिनिक में आई थी इन द मंथ ऑफ मार्च 23। सो उसके पापा पहले अंदर आए, और उसके पीछे ये लड़की आई, और फादर आकर बैठे, उसके पीछे लड़की आई और वो आकर खड़ी हो गई चेयर के पास। देन फादर ने बैठ के उसकी तरफ देखा और उसको इशारा किया, बैठने के लिए बोला, तब ये बैठी चेयर पे। उसके बाद फादर ने केस स्टार्ट कर दिया, मैंने जैसे बताई उसकी कंप्लेंट्स की, इसको पेट में दुखता है, राइट साइड में पेट में दर्द है, दिसंबर 2022 से इसको पेट में दर्द है। तो मैंने पूछा कि क्या वजह क्या थी, कैसे शुरू हुआ? तो बोले कि कुछ खास नहीं, हम लोग गांव गए थे शादी में, और गांव से आने के बाद इसके एग्जाम्स थे, बस दैट्स द ओनली इंसिडेंट। लेकिन इसको पेट में दुखता रहता है, चाहे कुछ भी रीजन हो, खाना खाया तो पेट में दुखता है, फिर ये रोती है,
और ही सेड बहुत ट्रीटमेंट हमने करवाया है, होम्योपैथी भी और एलोपैथी भी, एंड उन्होंने रिपोर्ट्स दिखाई. सो रिपोर्ट में था देयर वाज अ पैरा ओवेरियन सिस्ट ऑन द राइट साइड, सो दैट इट वाज अ एडनेक्सल सिस्ट in the broad ligament. So that was the history given by the father. Then मैंने तब तक ये लड़की बैठी थी और ये नीचे देखकर बैठी थी इन द क्लिनिक. तो मैंने इससे पूछा, यस कैसे हो बोलो. तो उसने स्माइल किया, थोड़ा नीचे देखा, थोड़ा मेरी तरफ देखा, फिर स्माइल किया. तो वो स्माइल कर करके मेरे साथ बात कर रही थी. मैंने कहा कैसे हो, बोली अच्छी हूँ. मैंने आस्क्ड हर कौन सी क्लास में हूँ. उसने बताया मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ. और मैंने पूछा क्या होता है, तो बोली पेट में दुखता है. मैंने पूछा घर में कौन कौन है, तो उसने बोला कि पापा मम्मी, मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है. सो मेरा क्वेश्चन था अगेन कि भाई के साथ कैसा है. कुछ आपका अनबन होती है, झगड़ा होता है, जैसे हमेशा भी छोटे बच्चे होते हैं तो वो सबसे पहले वो दिमाग में आता है. तो मैंने उस तरीके से उससे पूछा, तो बोली नहीं ठीक है. मतलब वो नीचे बार बार नीचे देख के मुझे जवाब दे रही थी, नीचे भी देख रही थी. और ज्यादा करके वो चुपचाप ही बैठी थी, स्माइल कर रही थी, नीचे देख रही थी. और फिर मैंने उसके पापा से पूछा कि इसका नेचर कैसा है. तो बोले वो समझदार है और समझ लेती है, भाई के साथ भी संभाल लेती है. मैंने पूछा समझदार है ने क्या, तो बोले कि कुछ होता है भाई के साथ तो संभाल लेती है. और लेकिन और उसे जब फ्री रहती है तो उसे ड्राइंग करना पसंद है. और बोले कि वो अगर उसे कुछ बोलो या उसको डांटो तो वो रोने लगती है. सो दिस वाज द हिस्ट्री गिवन बाय द फादर. फिर जो ऑब्जर्वेशन था मेरा कि ये इज a 12-year old girl. So when she entered the clinic, she was wearing t-shirt and jeans, and she was slightly on the obese side, थोड़ी मोटी थी. और जो मैंने देखा कि उसने बाल थे उसके, शोल्डर कट बाल थे उसके, अच्छे से मे बी तेल लगा के सेट थे. और उसने हेयर बैंड पहनी थी. नॉर्मली जैसे लड़कियां हेयर बैंड पहनती हैं, बट जो कैरेक्टरिस्टिक मुझे लगा बस कि वो हेयर बैंड में something is there in the hairband which was standing out. So that is what was she was wearing. Okay, so this is the case. And so through this case, I want to just share that how mind method can testify even organ on. And how we don't have to go dig deep, how Liaquat says. It's very very simple. So this is the case. Please आप लोग अपना share करिए whatever you have understood, and we'll take it forward. Yes. प्लीज शेयर, क्या समझा क्या नहीं समझा. हेलो मैडम। या वो फादर के साथ आई, उनके पीछे आई, जब उन्होंने बोला उसको बैठने को तभी बैठी। हाँ, मतलब सब उनकी बातें सुनती है, उनके अंदर रहती है। अंडर. अंदर ऐसा हाँ नहीं बोल सकते, लेकिन उनकी सब बातें सुन रही है। ओके. ओके, ठीक है. गुड. सो व्हाट एल्स, मतलब लाइक व्हाट आर यू गोइंग टू, मतलब व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर गोइंग टू. मतलब सब फैमिली के जब नाम बोले, फैमिली मेंबर्स के, तब भी उसने मम्मी पापा भाई सबके नाम एक सीक्वेंस में बोले। तो ओके. सब ये उसका अच्छा नेचर दिखा रहा है, हाँ, जो गुड. सबकी बातें सुन रही है घर में और सबको खुश रख के चल रही है। ओके. यस. गुड, नाइस थिंकिंग. एनीबडी एल्स? Anyone else can share?
क्या लगा ये लड़की के बारे में सुनकर, जो हिस्ट्री फादर ने दी, जो उसके ऑब्जर्वेशंस थे? मैम गांव से जाके आने के बाद उसका पेन स्टार्ट हुआ ना, हम्म। तो उधर कुछ हुआ क्या गांव में? नहीं, मैंने पूछा था उसके पापा को, हम्म। तो वो बोले कि ऐसा कुछ मेजर इंसिडेंट नहीं था। ही सेड ना, एग्जाम था उसका, गांव गए थे वो लोग शादी के लिए, उसका एग्जाम था आने के बाद, और उसको तब से मतलब दैट वाज द, वो एक उस समय से उसको स्टार्ट हुआ है। तो वहां पे मैंने उनको पूछने की कोशिश करी थी कि क्या है, बट ही से कैसा, दैट वाज नो मेजर इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड। पहले तो मुझे अलग ये लगा कि वो अपने पापा के साथ आई है। ये एज की लड़की में भी उसका मेंसेस स्टार्ट हो गए होंगे अभी, तो और स्टार्ट हुए। हाँ। अच्छा। पर ये एज की लड़की माँ के साथ आने में ज्यादा प्रेफर करती है, तो मुझे वो थोड़ा सा अलग लगा कि वो माँ के साथ आनी चाहिए थी। पापा तो थे ही पर माँ भी चाहिए थी। ओके, और एक चीज इसमें ऐसा है मंजरी की, ये जैसे नॉर्थ इंडिया के है ना, तो द फीमेल्स आर मोर ऑफ होम मेकर्स, जो ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं। मे बी दैट ऑल्सो कुड बी वन ऑफ द रीजन, एंड दे हैड कम फ्रॉम they had come from Naigaon, and they had come 2 to 3 stations from Virar. So maybe train में आना, that also could be one reason. But yes, what you said is also a very characteristic point, which is worth thinking about. Good, yeah, good observation. और वो आपकी तरफ देख रही थी आंसर देने तक, और फिर नीचे देख रही थी, तो वो भी हाँ, एक इवेंट लुक वाला लगा। ओके, ओके, हम्म। ठीक है। What else? बाकी तो बाकी आंसर प्रॉपर दे रही थी, यानी आपने जितना पूछा उतना ही बोल रही थी, कुछ भी ज्यादा नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बराबर आंसर दिया। ओके, तो बस। उससे आपको क्या समझ में आ रहा है इसके केस के बारे में, या? हम्म, वो नहीं समझा मैं। ओके, मैंने रूब्रिक्स नहीं। रूब्रिक्स नहीं है। ओके, ओके, गुड, फेयर इनफ। क्योंकि इसमें हेलो बहुत मैम। ज्यादा आपको हिस्ट्री पेशेंट से तो मिली नहीं है ना। फादर ने इनको हिस्ट्री बताई है, अ वेरी लिमिटेड थिंग, और नेचर के बारे में बताया, और कुछ हमने ऑब्जर्वेशंस किए हैं, है ना? व्हाट एल्स? हेलो मैम। यस। ये बहुत माइल्ड लगी मुझे, और ओके, बार बार नीचे देख रही है, तो टिमिडिटी भी हो सकता है उसमें। उसके ओके, फादर ने ये भी बोला कि वो बहुत समझदार है, तो प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, और थोड़ा सा भी डांटा तो तुरंत रोने लगती है, तो ये लड़की काफी सेंसिटिव है। वेरी गुड। हम्म। और उस वो ड्राइंग अच्छे से कर लेती है, तो आर्ट एबिलिटी भी ले सकते हैं। ओके, ओके। तो सिलिशिया पल्सेटिला कार्सी ये सब आ रहा है दिमाग में। हाँ, राइट, राइट। तो वही होता है, इस तरीके की पेशेंट्स आते हैं ना, सो यही रेमेडीज हमारे क्विकली दिमाग में आती है ना, दिस माइल्ड रेमेडीज, सिलिशिया, पल्सेटिला, कार्सिनोसिन, ऑल दीज विच वी frequently think. Okay, good. What else? Anybody? वो जो आपने बो का वो जो बताया, बालों का हेयर स्टाइल, हाँ, वो क्या कॉकेटिश की तरफ जा रहा था कि सिंपल ही था? वो आप बताओ, क्या लगा आपको? सर मैम आपने देखा था ना, हमने तो सिर्फ इमेजिन करना है, इसलिए कॉकेटिश हाँ, हो सकता है वो। अच्छा, ओके, कॉकविटिश क्यों? मैंने क्या बोला कि वो 12 साल की लड़की है, बाल उसके यहाँ तक कटे हुए हैं। ओके, उसने जब आई थी मैंने देखा कि तेल जैसे, मतलब बैठे हुए बाल ऐसे बैठे थे, एंड शी वाज वेयरिंग अ, मतलब मेरी नजर उसके हेयर बैंड पे गई है, बिकॉज इट वाज समथिंग वाज देयर ना, होता है ना, एक बो होता है या कुछ होता है हेयर बैंड पे। सो यू फेल्ट इट इज कॉकविटिश, राइट? यस मैम। ओके, व्हाट एल्स? एनीबडी? Good observations, good inputs. Yes.
आके बैठी नहीं, खड़ी रही चेयर पे, ये भी बहुत ही Yes, इम्पोर्टेंट, बहुत ही yes, इम्पोर्टेंट। very good, very good. Yes. What is it? What is this? वो यानी आज्ञाकारी लड़की होगी। हम्म, बिल्कुल। जैसे इसने दीपा नहीं बोला कि वो सेंसिटिव है, हाँ, बात मानती है, आज्ञाकारी है। ओके, गुड। और क्या लगा आपको? तो इसमें आपको यू नो जैसे क्या रेमेडी आपके दिमाग में चल रही है अभी? ये जो भी आपने बोला या जो भी आपने समझा केस को लेकर, तो अभी तक आपके दिमाग में कुछ रेमेडी चल रही है, कुछ आ रहा है दिमाग में? इग्निशिया लग रही है मैडम। इग्निशिया लगी। ओके, क्यों इग्निशिया? नीचे देख के बात कर रही थी, ओके, फादर के साइड में खड़ी थी। वेरी गुड। माय फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन वाज इग्निशिया। ओके, बट इग्निशिया इज नॉट द रेमेडी, वो इट फेल्ड। ओके, और कौन सी? तो अभी एक तो बता दिया मैंने कि इग्निशिया नहीं है। हेलो मैम। मैम, हाँ जी। कार्सिनोजेन भी हो सकती है। ओके, क्यों हाँ, कार्सिनोसिस? सबके यानी अच्छा रहने के लिए, सबके लिए अच्छा रह रही है, भाई से भी अच्छा रह रही है। गुड, यानी गुड बुक वाली, अच्छी लगी देखते ही, यानी वेल मैनर्ड लड़की लगी। वेल मैनर्ड। ओके, क्यों वेल मैनर्ड आप बोल रहे हो? वही वैसे ही ना मैम, की वो बैठी नहीं बोलने तक, सब भाई से भी पूछा तो ठीक है बोल रही, ऐसे झगड़ा वगड़ा नहीं, नहीं तो झगड़ा तो करते ही है बच्चे, भाई हम्म, भाई बहन तो झगड़ा करते ही है, और हम्म, आर्ट एबिलिटी भी है। हम्म। हम्म, ओके, बस, बाकी ठीक है, गुड थिंकिंग। हम्म, मैम मैं थोड़ा सर्वाइल की तरफ सोच रही हूँ। द क्यों वे सर्वाइव की तरफ? बहुत ओबीडियंट थी ना, फादर ने बोला तब तक नहीं बैठी, मतलब। सो अभी देखो, सबके अपने अलग अलग वो इनपुट्स है ना। अभी जैसे हमने देखा कि वो मानने वाली है, ओबीडियंट आप बोल रहे, तो ओबीडियंट और सर्वाइल, ऐसा क्यों? सर्वाइल इज लाइक हर चीज मान जाना या बिहेविंग लाइक दैट ना। सर्वाइल क्यों लगा आपको? बिकॉज उसने फादर के बोलने के बाद बैठी इसलिए? हाँ, इतनी ओबीडियंट चाइल्ड तो बहुत रेयर देखने को मिलती है। मतलब फादर ने बैठने को बोला, उसके बाद बैठी, और उसके भाई के साथ भी लड़ाई नहीं होती है। शी इज गुड हाँ, विथ एवरीवन। तो ओके, इसलिए मुझे लगा कि बाबा इट मे बी सर्वाइल। ओके, इग्नेशिया, मेरे मन में भी थॉट चल रहा था इनिशियली दैट शी हाँ, वाज लुकिंग डाउन ऑन, शी इज वेरी ओबीडियंट। बट हाँ, व्हेन यू रूल्ड आउट इग्नेशिया, तो आई वाज थिंकिंग ऑन द लाइंस ऑफ सिलीशिया। ओके, थोड़ा यील्डिंग डिस्पोजिशन, और वो जो क्रिएटिविटी है उसमें, वो माइंड। ओके, ठीक है, गुड गुड थिंकिंग। Yes, she is, she's yielding, and we're seeing that how she's standing before, when the father is, जब तक father ने बोला नहीं तब तक बैठी नहीं. So यहाँ पर like how, लियाकत sir always says, don't miss the entry. तो यहाँ पे also we have to, you know, जैसे pick out the important things, why this girl is doing like that. So, of course, here, it is the overall case and our understanding which we will go and bring down to the rubrics. What else? हेलो मैम। Yes. यस मैम, मैंने कुछ रूब्रिक लिया है, जैसे कि आपको देख के स्माइल की एफेक्शनेट है ना। हाँ. इसको आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है, तो आर्ट एबिलिटी फॉर Okay. प्रिकोसिटी
चिल्ड्रेन है वो अपने भाई को संभाल ले रही है इतनी हाँ छोटी उम्र में। और हाँ एक रूब्रिक मैंने बनाया वीपिंग रेप्रिमांड वेन, जैसे थोड़ी डांट वगैरह फटकार जल्दी रो जाती है तो इससे सिलिसिया आ रहा है। सिलिशिया आ रहा है। ओके, ठीक है। ओके, रूब्रिक्स तो बहुत क्लोज क्लोज ही चल रहे हैं, और इसीलिए ये केस में रेमेडीज भी बहुत क्लोज चल रही थी ना। सारी वो जो माइल्ड और सेंसिटिव जो रेमेडीज हैं, वो सब साथ 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 चल रही है। सो इसीलिए लाइक blindly even I thought कि this she looks like a very obedient and a good girl, a common good girl image वाला. So even I had given her Ignatia. The first prescription was Ignatia, but her pain increased, and father said वो तो बहुत रो रही है अभी, so I had to give another remedy which helped. Anybody else? Any other input? So as a person ये कैसी है लड़की? एज अ पर्सन ये लड़की कैसी है? बहुत सारे जो आप लोगों ने बोला है वो करेक्ट है, तो इसको अगर हम साथ में लेंगे तो ये एज अ पर्सन ये कैसी है? shy and timid. टिमिड, यस यस। वो जो नीचे देख रही है मेरी तरफ, फिर वापस स्माइल कर रही है, थोड़ा नीचे देख रही है, फिर जवाब दे रही है, फिर नीचे देख रही है, तो ये टिमिडिटी है डेफिनेटली। और वो बाकी टाइम तो उसके पापा बात कर रहे थे, वो चुप बैठी थी। फादर ने बोला ये कम बात करती है, ये भी बोला उन्होंने कम बात करती है। मैम प्रिकॉसिटी है, ओके, प्रिकॉसिटी क्यों लगा आपको? कम बात कर रही है और बड़े लोगों जैसा बिहेव कर रही है, बैठने को बोला तभी बोल रही है। उसमें और बड़े जैसा क्या था? वो नहीं, अच्छा छोटे, प्रिकॉसिटी आप बोल रहे हो, लेकिन व्हाई यू सेइंग प्रिकॉसिटी इज व्हाट आई एम आस्किंग। मुझे उसका वो कम बोलना और वो जो आपकी तरफ देख के वो जो लुक है, मैंने इमेजिन किया तो मुझे ऐसा प्रिकॉसिटी जैसा लगा ओके कि घर में भी झगड़ा नहीं कर रही है, ऐसे लगा मुझे। ओके, तो वो जैसे झगड़ा नहीं कर रही तो ऑफ कोर्स बहुत सारे रूब्रिक्स भी आ जाते हैं, बट ठीक है, गुड गुड थिंकिंग। प्रिकॉसिटी इज कैसे? अपनी उम्र से जल्दी ना बड़े जैसे बिहेव करना या बातें करना, उस तरीके से हम प्रिकॉसिटी लेते हैं ना। सो गुड गुड थिंकिंग। व्हाट एल्स? जो बीच बीच में आपको देख रही है, फिर घड़ी में नीचे देख रही है, तो आउट ऑफ फियर देख रही होगी, वो भी एक होगा कि फियर ऑफ बीइंग इंजेक्टेड बाय यू, स्टमक नहीं पेन, यूजुअली इंजेक्शंस, ऐसे कुछ होगा वाई? नहीं, बट उसे तो पता है ना कि मैं यहाँ पे तो कुछ उसको इंजेक्शन देने नहीं वाली हूँ, so ये तो बहुत ज्यादा अजम्पशन हो जाएगा ना। उसको हम सिंपल ही जाएंगे ना, बहुत सिंपल देंगे। अभी कोई भी हमारे सामने बैठा है और स्माइल करता है, थोड़ा नीचे देख रहा है, स्माइल कर रहा है, नीचे देख रहा है, इसको सबसे पहले तो हम टिमिड ही लेंगे ना। सबसे पहला वेरी सिंपल यू गो इज टिमिडिटी। टिमिडिटी, बैशफुल इज द फर्स्ट थिंग दैट वी अंडरस्टैंड। फियर विल बी अ assumption कि वो, हमको पता नहीं है ना कि वो डर है या नहीं। उसने कुछ बोला नहीं, उसके पापा ने भी कहीं मेंशन नहीं किया ना फियर के बारे में कि वो डरती है या ऐसा कुछ, उसके पापा ने भी कुछ नहीं बोला है। तो Maybe she फियर, night removed. pardon? She may be night removed. Maybe, maybe. You tell me, what is the remedy? Why you feel natural? वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है ना। Okay. और एक ही टिमिड भी है। और और वो यस, यस बोलिए, आप क्या बोल रहे थे?
नहीं, थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है मेरी तरफ। ओके हाँ, एक तो मुझे नाइट्रो मूड लग रही है। ओके ओके, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रही इसलिए नाट्रोमूर लग रही है। एक्सप्रेस भी, और वो मतलब नाइट्रो मूड जल्दी ऐसे अगर वो नए लोगों के सामने भी आएगी तो इतने जल्दी खुलकर नहीं ये करेगी ना वो। ओके, तो शायद घर पर वो हाँ। उसके पापा ने बोला वो शांत है, मतलब वो कम बात करती है। हाँ, तो नाइट्रो मूड शांत भी होता है ना, हाँ, तो सिर्फ टिमिड भी नाट्रोमूर होता शांत है। नहीं, और भी बहुत सारी रेमेडीज होती है ना शांत। मैम एक और जैसे थॉट उसकी क्रॉस हुआ, व्यू। एम्ब्रा यस, ग्रेसिया भी मन में आया। वो भी ओके थोड़ी शाय और टिमिडिटी बैशफुल ऑकवर्ड में रहती है, ओके, yielding disposition and she's in inhibition. अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है। टिमिडिटी बैशफुल तो यस, बट टिमिडिटी बैशफुल ऑकवर्ड आप बोल रहे हो ना, सो दिस इज अ डिफरेंट थिंग। एंड उसके अंदर इफ यू गो टू कंप्लीट रेपर्टरी, उसमें स्पेसिफिक रेमेडीज हैं व्हेन यू टॉक अबाउट टिमिडिटी बैशफुल ऑकवर्ड। ये ऑकवर्ड थी क्या? वो जो नीचे देखना फिर घड़ी में आपको देखना, वो मुझे वो थोड़ा क्या था? awkwardness लगा। ऑकवर्डनेस क्यों? ऑकवर्ड का मीनिंग क्या होता है? डिस्कम्फर्ट, अनकंफर्टेबल रहता है ना। अनकंफर्टेबल, हाँ। राइट राइट। हम्म। तो यहाँ पे नीचे देखने में अनकंफर्टेबल क्यों डियर? है ना, नीचे वो मेरे तरफ देख रही है, स्माइल कर रही है, फिर नीचे देख रही है, फिर कुछ बोल रही है, फिर नीचे देख रही है। तो ये ऑकवर्ड, मतलब वो शी वाज नॉट, आई डिड नॉट फील दैट शी वाज इल एट ईज। ऑकवर्ड में कैसा होता है? अनकंफर्टेबल ना, इल एट ईज। हम्म। शी वाज नॉट दैट वे। सो ये जो है ना टिमिडिटी बैशफुल ऑकवर्ड, हम्म। तो अगर वो आपको उस तरीके से मिलता है देन यू टेक सो, बट यहाँ पे शी वाज नॉट ऑकवर्ड, यस शी वाज टिमिड डेफिनेटली। Okay, thank you, ma'am. But please explain the expression afterwards. yes, yes, definitely. So she was timid, of course. So timidity, bashful was the first rubric, definitely. Also, one more thing, जैसे like I said that these observations, what I felt was जैसे वो आके रुकी, father ने बोला तब वो बैठी. Then then next thing what I observed was that characteristic hairband. So she is an 8th standard girl. So that means she for her age, she came in a way that she would look nice, wearing a t-shirt, jeans or hairband properly. वो उस तरीके का कुछ था उसमें. So that was, I was thinking कि what this can be, what is this? Also, one thing that I noticed in her thing was कि वो जब मेरे से बात कर रही थी ना, तो जैसे स्माइल कर रही है, नीचे देख रही है, बात कर रही है, और लिप का ये हिस्सा उसका ऐसे थोड़ा सा ऐसा ऊपर ऊपर हो रहा था, मतलब मुझे वो चीज भी मुझे एक उसके नजर में आई कि वो शर्मा भी रही है मेरी तरफ देखकर, नीचे देखकर बात भी कर रही है, जो भी उसने जवाब दिया, बट एट द सेम टाइम उसके वो ये जो है ना वो भी मैंने सोचना शुरू किया कि भाई ये क्या चीज हो रही है, उस मतलब ये क्या, व्हाई शी इज डूइंग लाइक दैट. Okay, so this is the overall input of the case. ठीक है, so कोई रेमेडी आपके दिमाग में आ रही है? नाट्रोमोर बताया, then सिलिशिया, कार्सिनोसिन, what else? Hello, yes, Staphysagria. Why Staphysagria? वो तो बताया ना, हाँ? लिप्स का बताया अभी आपने. लिप्स का बताया. ओके ओके ओके, ठीक है. Okay, so let's see the case and understand the case. So I'll request Pranita to share the
Yes, ma'am. Please. So this is para-ovarian cyst, and I named it as an ideal cure because I really felt that the way this case has progressed was actually an ideal cure, which is really testifying our aphorism of Organon. Next. So what is ovarian cyst? Now, normally, see, this was not the cyst in the ovary as such, but it was close outside the ovary or next to the ovary. So cyst is if you understand the metaphysics, it's a round formation containing a liquid substance which does not communicate with the outside world. So it is under, it's contained within itself. So cyst is representing a hurt or a regret or a grievance which comes to mind frequently, and you are constantly feeding it. मतलब आप बार-बार उस बारे में सोच रहे हो, तो it is there. And any situation in life which has caused or is causing the stoppage of our usefulness. So this is what Liaquat sir has mentioned in his book Humanopathy about the metaphysics of ovary. That ovary is related to production. So wherever the productivity is hampered, there also you get the production of development of cyst. Also, this was a right-sided cyst. है ना? This was a right-sided cyst, and right side has got to do with the male part. And you see that जैसे बहुत सारे सब लोगों ने ऑब्जर्व किया कि वो अपने पापा के साथ आई, है ना, जैसे किसी ने बताया कि वो मम्मी के साथ आना चाहिए था, and then somebody observed that जब तक पापा ने उसको बोला नहीं, वो पापा के अंडर में है, so वो पापा के साथ आई, and this is a right-sided cyst which has got to do with the male part of a life. Okay, next. So yes, this is Staphysagria. So what rubrics I had taken was timidity, bashful, then looked at to be evading the look, वो जो नीचे देख रही थी बार बार, मतलब वो she was not directly looking at me. So this is what I had taken. Then जैसे उसके पापा ने बोला था कि she is very sensitive, उसको कुछ बोलो या डांटो तो वो रोती है, तो मैंने फिर weeping admonition लिया था, sensitive to rudeness, like how somebody said she likes to draw, so art ability, yes. Everybody judged precocity very well, though understanding सबने अपनी अपनी अलग अलग बताई. So precocity मैंने इसलिए लिया क्योंकि उसके पापा ने बोला ये समझदार है. हाँ, so समझदार मतलब क्या? समझदार is somebody who is very sensible, है ना? So ये समझ के लेती है, भाई के साथ भी कुछ होता है तो समझ के लेती है. So अभी 12 साल की लड़की से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझ के लेगी, हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो भी थोड़े से अपने कभी कभी टैंट्रम्स दिखाए, कभी गुस्सा करे, कभी रोए या कभी कुछ बोले, बट ये वैसा कुछ नहीं कर रही है ना. सो दिस इज वेयर आई अंडरस्टूड दैट ये अपनी उम्र से थोड़ी जल्दी बड़ी हो गई ना, जबकि उसने बड़े लोगों जैसे कोई बातें नहीं की, बट उसका बिहेवियर जो घर में था, यस, एवरीबडी अंडरस्टूड इट आल्सो वेरी करेक्टली, दिस इज प्रिकॉसिटी, तो अपने उम्र से जल्दी बड़ी हो गई. और आप देखो अपनी उम्र से जल्दी इसको सिस्ट डेवलप हो गई ना, काफी बड़ा सिस्ट था इसका. नॉर्मली हम जो वी कंसिडर केसेस ऑफ पीसीओडी और पीसीओएस विच इज देयर इन द मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स, या फिर बाद में होता है और डेवलप्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी. इसका तो अभी तक प्यूबर्टी ऑनसेट भी स्टार्ट नहीं हुआ था, मेनार्की इसका हुआ ही नहीं था, शी हैड नॉट येट स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग. सो बिफोर दैट ओनली शी हैज डेवलप्ड a big cyst. So this is also, you understand that how she is growing अपने उम्र से ज्यादा जल्दी बड़ी हो गई. Then morals, ये जो उसने फादर के बोलने पे लिखा, दीपा सेड इनिशियली कि फादर के अंडर में है. So we don't know whether father is dominating or not because he did not seem like that, but we don't know, but it would be an assumption. But yes, जैसे उसने बोला कि घर में मम्मी पापा मैं हूँ, भाई है. Then also, she stood, she did not sit till her father said. So this is also, out of respect for her father. So this is like the morals that, we see that, moral impressions. जैसे बड़े हमको बोलते हैं इस तरीके से behave करना.
So this is where I took, sensitive to moral impressions. And एक बहुत beautiful rubric which is there from Complete Dynamics, that is looks, appearance, concerned about his. So ये जो उसने जो हेयर बैंड पहना था, which Manjari said coquettish. So even I was thinking कि ये coquettish की तरफ है क्या, but वो इतनी छोटी लड़की, वो उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है. So this is what has been shared, that is looks, concerned about this. So this remedy, that is Staphylos aureus, is very the way she was wearing her hairband. So she wanted to look nice, na? That is why she came in that jeans and t-shirt, and she wore a particular kind of a hairband when she came. So yes, this is Staphylos aureus. Next. So this is why I called it as an ideal cure, that because you will not believe it, that I gave her Ignatia first, and then I understood that next time only the father said कि उसको तो पेट में बहुत दुख रहा है, and definitely the remedy was wrong. And then I thought again. So my entry into Staphylos aureus was like how some nicely pointed out, was because of that lip movement. So I felt कि एक तरफ ये लड़की शर्मा रही है, मेरे तरफ नीचे मुंडी करके भी बैठी है और शर्मा के बात कर रही है, लेकिन साथ में जो उसका लिप का जो ट्विस्टिंग था ना, इट लुक्ड एज इफ वो जैसे हम लोग वो कंटेम्प्ट नहीं बोलते हैं, जैसे लाइक हु आर यू टाइप्स, इस तरीके का जब हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है, या जब हम लिप्स को ऐसे करते हैं ना कि दैट वे, इस तरीके से शी वाज डूइंग समथिंग टू हर लिप. सो आई फेल्ट कि वन साइड शी इज very nice, very good, very sensitive, very proper, और एक तरफ ये इस तरीके से कर रही है. So that is where on the feel I have given her Staphylos aureus, and you will not believe it, the next day she got her menses. So when she got her menses, her pain completely reduced. Completely reduced means completely gone. So this was actually testifying our aphorism number 2, which talks about ideal cure. That is, the highest ideal of cure is rapid, gentle, and permanent restoration of health, removal and annihilation of the disease in its whole extent, in the shortest, most reliable, and most harmless way, based on easily comprehensible principles. So this cyst regressed with the medicine within a span of 2 months. So there was, and then it regressed completely. It has not, ever since that, it has never come back. She has got her regular menses after, the remedy. After the remedy, she also developed, so it was very rapid. It was gentle. She did not have any complaints. She did not have any pain. It was permanent restoration of health. Also, with the after the cyst regressed, she developed warts on her hands, which also dried on their own. So, so beautiful, the mind method, where we take very, very simple rubrics, is actually so deep. It has testified, it has really, this is a testimonial to the, to the ideal cure and to our aphorism, or to the organon. Yeah, next. So here I want to again stress, and deep thanks to Dr. Liaquat for teaching us that though it was not that characteristic lip affectation what he has taught about Staphylos aureus, but this was, she was twisting it upwards. So the subtle movement of the lips, which often goes unnoticed, has helped crack this case. So this unspoken language of the patient is so important. And movement of lips, as Sir always says, is a very, very characteristic feature of this remedy. So yes, this was Staphylos aureus. And, so this, I am telling you, this gesture must give, Dr. Liaquat a lot of royalty, because I have, used it many times, and it has never failed. It has really never failed, So hats off to, his observation when he, points out that what could be the thought behind that gesture. He always says lips ke saath khelne wala. See how he beautifully explains the lips ke saath khelne wala is a gesture of this remedy. So
लिप्स के साथ खेलने वाला is like again slowly going towards that coquettish, तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो she will go into that behavior of becoming coquettish. Yeah. Next. So this is the report on March 12th. It says right para-ovarian cyst, which is seen, and after the treatment, we'll see. To the next. So this says no significant abnormality seen in the scan. Previously noted right para-ovarian cyst, not seen signs of complete regression. This is in the month of May. So this is Staphylococcus aureus, and so this was about the case which I wanted to show. It is an ideal cure as per what I could see it, very rapid, very gentle. And if it was not for Liaquat, who had shown about gestures, I would have gone into Ignatia like I gave first, then I would have moved, or then I would have thought of carcinosine. But it was this gesture which really helped, So again, thank you so much, Liaquat. Please share something about it. Over to you. About what? About the band or Gesture. the About the gesture? band, yes, about the band also. Yes. What did you speak about the band? I was talking to my son actually. So The band is what you shared, that she's looks concerned about the appearance. looks and yeah, because they are very much concerned about opinion of people, na? Staphylococcus aureus are very much concerned about क्या है उसके अंदर वो Sensitive to opinion वो? of others. Sensitive to opinion of others. Yeah. So your concern, the matter of your concern is the matter of your sensitivity, is what I believe. Yeah. Your concern goes to for one step further, becomes a matter of sensitivity. So that is why Staphylococcus aureus will not go over top. That is why Staphylococcus aureus is not there in the rubric foppish. सर का म्यूट हो गया. See why Staphylococcus aureus is not in the rubric foppish. The reason is it doesn't go over the top. Staphylococcus aureus thinks dignified. Right. But Staphylococcus aureus is there in the rubric vanity. Huh? Yeah. हाँ. So मैं यही आप लोगों को बताता हूँ, ये एम्बिशन फॉर फेम जो है ना, ये आपको वैनिटी की तरफ लेकर जाती है ना. एम्बिशन फॉर फेम में मुझे लगता है लैकेसिस भी होना चाहिए ना. एम्बिशन इंक्रीज फॉर फेम, यस, उसमें लैकेसिस है, पर लैकेसिस कॉक्वेटिश की तरफ जाके, पॉपिश की तरफ जाके एम्बिशन फॉर फेम में जाएगा. I think I have a problem with network, guys. Okay. Some other time I'll talk about Staphylococcus aureus. Okay. Some other time let's talk about Staphylococcus aureus. For today, thank you very much, Nishu. It was wonderful because we had discussed about this case before. Yeah. It's really fantastic to listen to you, and the way you cracked Staphylococcus aureus is again commendable. I'm sure Thanks to you. the It audience was today again because of the lip gesture. मैम ये वाला जेस्चर आपने पहले But बताया होता I'm तो very सबने happy क्रैक that किया रहता था, जो भी सर के स्टूडेंट्स हैं सबने. Yes. Yes. so sweet. Thank you, ma'am. Thank you. For a wonderful session. Thank you, madam. Thank you. Thank you.